नहीं ठीक नेट प्रॉब्लम। आप सभी लोग की फीस का क्या स्टेटस है बेटा? मांडवी, कल अपसेंट थी, क्या हो गया? बहुत बच्चे ये अपसेंट क्यों चल रहे हैं भाई? अरे ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है। फिर
Screen is visible. So today I am going to discuss about the CSMA protocol and its two variations, CSMA CD and CSMA CA, collision detection and collision avoidance. ये दो मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक दोनों ही आपके। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। जस्ट 2 मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगता है। So in this slide, we first understand what is CSMA and what is CSMA CD. CSMA CD introduction and concept, how to CSMA CD protocol works, collision of first bit in CSMA CD, CSMA CD collection detection procedure, flow chart of CSMA CD, energy level of CSMA CD, state of CSMA CD, CSMA CD performance, throughput, collision and abortion in CSMA CD, and application of CSMA CD. So yes. So what is CSMA CD? So CSMA CD protocol can be considered as a refinement and modification of, you can say that, pure carrier sense multiple access. Pure carrier sense multiple access. Pure carrier sense multiple access. In CSMA system, the chance of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. Means you can say that to a large extent, it before it is going to send any packet, it must be aware in advance that where may be the position or the chances of collision. It can be detected and can be reduced, but you can't say that is it totally eliminates the collision process. To a large extent, it is trying, but you can't say that ये पूरी तरह से आपका खत्म हो जाए, अब होगा ही नहीं, ये आप नहीं कह सकते हैं CSMA CD। ठीक है, तो CSMA CD is used to improve CSMA performance and it augments the algorithm to handle the collision. CSMA CD mainly improve, जो इसका पहले तो CSMA होता क्या है, carrier sense multiple access. There I already told you there are two variations of CSMA. First one is collision detection, second is collision avoidance. Collision detection means to a large extent it is able to detect the collision. So number of methods and algorithms are established to detect the collision. ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे दूसरा एक इसका वेरिएशन यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं collision avoidance, CSMA CA. Collision avoidance से आप to a large extent you will be able to eliminate carrier sense multiple access with collision detection. You can say that CSMA CD is a media access protocol या MAC protocol used most notably in early Ethernet technology for local area networking. This is used in combination with collision detection, in which a transmitting station detects collision by sensing transmission from other stations while it is transmitting a frame. When the collision condition is
detected, the station stops transmission. Station stops the transmission. The frame transmits a jam signal. क्या करता है कि एक जैम सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जैसे किसी भी कोलिजन डिटेक्शन मेथड से किसी भी स्टेशन को पता चलता है कि अब यहाँ पे कोलिजन होने वाला है, डिटेक्ट हो गया है, उस केस में क्या करता है कि वो फ्रेम को भेजना, सेंड करना, क्योंकि all the stations, all the senders try to send ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपका। हाँ तो थोड़ा सा इश्यू होगा, मैं इसका तुमको वीडियो भी भेजूंगा, वीडियो से आप इसको सुन पाएंगे। मे बी देयर मे बी सम सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, थोड़ा यहाँ फॉग भी है, तो हो सकता है कि थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही हो। अब आ रही है आपका? हाँ, so as soon as collision detection is process is going on and any station detected, there is a possibility of collision, then station stops transmitting that frame and transmit a jam signal and then wait for a random time interval before trying to resend the frame. तो जैम कर दे, जैम सिग्नल भेज करके उस समय तक जैमर लगा देता है और कोई भी उस रूट पे पैकेट नहीं भेज पाता है। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वेटिंग, उसके बाद वो रीसेंड करते हैं फ्रेम को। तब तक इट इज ऑब्जर्व और इट इज ऑब्वियस दैट देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द जो आपका कोलिजन जो प्रॉब्लम है या जैम जो वहाँ पे आ जाता है, जैम जो सिग्नल आपने लगाया होता है वो भी खत्म होने लगता है। उस केस में तब तक आप वेट करते हैं और उसके बाद तब जाके पैकेट रीसेंड करते हैं। By using this particular diagram, we will be able to understanding the working of CSMA CD. In CSMA CD method, a station monitors the medium after it sends a frame to see if the transmission was successful. If the transmission was successful, the station is finished, means their job is finished. However, if there is any collision, the frame will sent again. तो ये आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम से, यहाँ पे ए और सी दो सेंडर है और ये पैकेट सेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, सेंस करते हैं चैनल में। अगर कहीं कोई कोलिजन आता है तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उसी समय मीनवाइल जैमर लगा दिया जाता है कि फर्दर पैकेट ट्रेवल ना कर पाए। और जो भी कोलाइड हो जाते हैं पैकेट आफ्टर द कोलिजन, सम पैकेट में बी डिस्कार्डेड और लॉस्ट इन द नेटवर्क। that packets are known as orphan packet, lost anywhere, और उसके बाद उसको हम लोग रीसेंड कर देते हैं। that packet will be resent. तो how to CSMA protocol work, कैसे कर सकते हैं वर्क, देखिए कैसे हो रहा है। फर्स्ट जो आपका स्टेप है, इफ मीडियम आइडियल देन ट्रांसमिट, अदरवाइज फॉलो द स्टेप 2। अगर मीडियम आपका आइडियल है तो ट्रांसमिट करिए, अदरवाइज स्टेप 2 फॉलो करना है। इफ मीडियम बिजी वेट अंटिल आइडियल देन ट्रांसमिट विद T1। T1 एक टाइम है, टाइम अलॉट कर दिया गया और उसमें आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस इज अ सेल्फ मेड एल्गोरिथम और द सेल्फ मेड कंक्लूजन। If collision detection, transmit brief jamming signal, jammer लगा दिए and abort transmission. Abort, after aborting, wait random time and try again. Random time कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 दिन, जब तक आपको लगे
रैंडम वेट है, ये कोई डिसाइडेड नहीं है, यहाँ कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है टाइप का, और उसके बाद उस पैकेट को यू कैन रीसेट. This is the diagram by which you will be able to collision detection procedure. This is carrier sensors, यहाँ पे सारे लगे होते हैं. Carrier sensor nothing, एक आपके सिस्टम जो स्पेसिफाइड होता है टू सेंस द जैमिंग पोजीशन और द कोलिजन पोजीशन. वहाँ पे जो भी पोजीशन या पोजीशन को मैनेज करता है उसको हम लोग कैरियर सेंस कहते हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम and there are multiple access systems जो आपके लगे हुए हैं, और there may be some devices which detect collision. जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैं माउस भी ओवर कर रहा हूँ, C में आप देख पा रहे हैं कि there may be possibility to collision. The devices that were involved in the collision do not have priority to transmit data. Jammer लगा लेता है. When a collision occurs, each node that is transmitting will continue to transmit for a short time to ensure that all devices see the collision. तो ये जैमर लगा दिया जाता है, और जहाँ पे भी जैमर होता है उस पर्टिकुलर स्टेशन पे फिर से वेट किया जाता है, और वहाँ पर कोई पैकेट सेंड नहीं किया जाता है. एक रैंडम इंटरवल टाइम के बाद फिर आप पैकेट को रीसेंड करते हैं. CSMA CD का आप इस डायग्राम से भी एनालाइज कर सकते हैं. ईच स्टेशन कंटिन्यूज टू सेंड बिट्स इन द फ्रेम अंटिल डिटेक्ट द कोलिजन. बड़ा कर देते हैं. This is the diagram. ABCD are the station. Transmission time T1 to T4 है. First bit of A sent to the D, और उसके बाद फर्स्ट बिट ऑफ C, और किसी एक पोजीशन पे आपको लग रहा है जैसे A से यहाँ तक गया, और उसके बाद यहाँ देखिए आप कोलिजन यहाँ पे कहीं पे अकर हो रहा है. दिस इज द पोजीशन वेयर A is collision detection and abortion, और यहाँ पे C collision detection and abortion. उस केस में यहाँ पे डिटेक्शन हो जाता है और तुरंत बता दिया जाएगा. फर्दर कोई भी पैकेट शेयर नहीं होगा. वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर रीसेंड द डिटेक्टेड पैकेट. या आपको जो भी लग रहा हो कि ये पैकेट्स अब आपके कोलाइड हो जाएंगे, तो उनको हम लोग रीसेंड कर देते हैं. रीसेंड करके फिर उसको अवॉइड कर देते हैं. There are different methods for collision detection. Use one of the persistent method. There are CSMA of three types. First one is non-persistent CSMA. Second one is the one persistent CSMA, and third one is P% CSMA. What should a station do if the channel is busy or idle? Constantly monitor in order to detect one of two conditions. First one, transmission is finished or a collision is detected. Sending of a short jamming signal that enforces the collision in case other station have not yet sensed the collision. समझ रहे हैं? तो जैमिंग सिग्नल एक भेज दिया जाता है. ये मैं ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे ही कहीं भी आपको लगता है कि कोलिजन होने वाला है, जैमिंग सिग्नल, शॉर्ट जैमिंग सिग्नल जो है वो सेंड कर दिया जाता है, एंड उसके बाद ये बताया जाता है कि अदर स्टेशन हैव नॉट येट सेंस द कोलिजन, और उस पर्टिकुलर स्टेशन को मना कर दिया जाता है कि अब फर्दर वो कोई भी फ्रेम सेंड नहीं करेगा. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ कोलिजन. तो ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ना ही हमें इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, ये एनर्जी लेवल भी हमें नहीं देखना है. दिस इज द स्टेट्स इन CSMA CD. आई थिंक ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. मैंने ये आपको क्लास में ही बताया था. टेनिनबाउम से आकृति.
इस डायग्राम को सही से देख लीजिए बेटा सभी लोग। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्टेट्स इन सीएसएमए सीडी, दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ सीएसएमए सीडी। और इसके बाद फ्रेम फॉर्मेट, अगर डायग्राम की बात होती है, बाकी ये सब तो डायग्राम उन्होंने इस पर्टिकुलर पीपीटी की बात है, रेडीमेड पीपीटी है यहाँ पे, तो वहां पे ये सब कंटेंट्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो ये दिस पर्टिकुलर स्टेट डायग्राम एंड द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ सीएसएमए सीडी। तो ये डायग्राम तो मैंने आपको सभी को नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। 3 स्टेट्स होती है, कंटेंशन, ट्रांसमिशन, आइडियल स्टेट। दिस इज द frames, this is transmission period and this is the contention period. Frame and a slotted time t0 where the contention slots are available here, and after that frame is next process में आगे बढ़ता है। और ये कंडीशन होती है आइडियल कंडीशन होती है, जहां पे आइडियल कंडीशन में ही इस कंडीशन के बाद ही फ्रेम को फर्दर सेंड किया जाता है, कंटेंशन पीरियड तक वेट किया जाता है, जैमर लगा दिया जाता है। देखिए फ्रेम चलता है, फ्रेम चलने के बाद एक कंटेंशन पीरियड होता है, कंजेशन पीरियड ऑफ टाइम होता है, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, या सीएसएमए सीडी जो उसका वेरिएंट सीडी है, कोलिजन डिटेक्शन, दिस विल एक्टिवेट एंड सेंस देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेशन। दिस पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज कंटेंशन पीरियड। उसके बाद आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वेटिंग दिस पैकेट इज मूव फर्दर, और उसके बाद जहां पे आपको लगता है कि आइडियल पीरियड आ गया है, फिर से ये पैकेट दोबारा से रीसेट कर दिया जाता है टू द डेस्टिनेशन एंड। सो दिस डायग्राम शोज दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, कंटेंशन, ट्रांसमिशन एंड आइडियल स्टेट। Collision and abortion in CSMA, the CSMA method does not tells, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, does not tell us what to do in case there is a collision। ये हमको कभी भी CSMA नहीं बताता है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम, मिनिमम फ्रेम साइज। पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रेम साइज हमारा मिनिमम होना चाहिए। For CSMA CD to work, we need a restriction on the frame size. The frame transmission time must be at least 2 times the maximum propagation time of TP. ठीक है, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम TFR, जो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम जो TFR है, must be at least 2 times the maximum propagation time up. By this diagram you will be able to see the working of collision and how you will be cover that collision by resending the packets। ठीक है, वो डायग्राम हमने पिछले बार देखा था, जो जहां पे कोलिजन हो रहा था ब्लैक और रेड लाइन से, तो बस इसको ब्लू और येलो कलर से इसको शो कर दिया गया, और यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिया रेड कलर से कि यहाँ पे कोलिजन आपका हो रहा है, ट्रांसमिशन टाइम है। और वो पर्टिकुलर टाइम जब आपको पता चले कि यहाँ पे कोलिजन आपका आ गया है, और वो जो पैकेट जो सेंडिंग प्रोसेस है वो अबॉर्ट हो जाता है। उसके बाद एक इंटरवल ऑफ टाइम जो आपका T2 एंड T3, इसमें इस इंटरवल टाइम के बीच में आप जो भी जो वेट करने के बाद जो पैकेट आपके डिस्कार्ड हो गए या लॉस्ट हो गए, उनको हम लोग रीसेट कर देते हैं। Reaction time, time to detect collision that is greater than 2 maximum propagation delay, minimum frame size enough to allow collision detection prior to the end of transmission. The reaction time in CSMA CD is 2t propagation time, जो भी propagation time होता है उसका डबल होता है। Throughput in CSMA, थ्रूपुट का मतलब परफॉर्मेंस हो गया। द थ्रूपुट ऑफ CSMA CD इज ग्रेटर देन द प्योर एंड स्लॉटेड अलोहा। देखिए प्योर अलोहा का थ्रूपुट आपने पढ़ा था S इक्वल टू G इंटू 2 की पावर माइनस 2G, G इंटू E की पावर माइनस 2G।
और स्लॉटेड लोहा पढ़ा था G इंटू ई की पावर माइनस जी यानी 1G। ये याद है, कल ही हम लोग ने पढ़ा था। कोशिका 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 श्रेयांश, श्रेयांश त्रिपाठी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर एकदम? तो यार ये कोशिका बोल नहीं रही है, ये हमको लग रहा है ज्वाइन करके चली गई है। ये ना बनाओ कि आप लोग सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हो। शशांक, हाँ स्लॉटेड लोहा का कल हम लोग ने थ्रूपुट कितना निकाला था? थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड लोहा शशांक, हाँ थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड लोहा। देखिए ये सब चीजें बहुत पूछी जाएंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बाकी थियोरेटिकल हो सकता है आपको लगे समय कि नहीं, नहीं है, बोरिंग है, जो भी है, लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। जल्दी बताइए। याद क्यों नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कहो। रितिका, रितिका बताइए स्लॉटेड लोहा का थ्रूपुट कितना है? ये नहीं कहो याद नहीं है। कितना है? सिक्सटीन 16.4 नहीं है, फॉर्मूला बताओ, उसके बाद तो वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मौर्या बताओ कल कहां थे? रास्ते में था, आज घर पहुंच गया? मांडवी बताइए। यह फॉर्मूला बताओ मुझे, वो नहीं जानना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बताया था मैंने, ध्यान से सम सुनिए, प्योर इलेक्ट्रॉन बताया था जी ई एक्सपोनेंट की पावर माइनस 2G। स्लॉटेड लोहा का फॉर्मूला बताया था G इंटू ई की पावर माइनस G, where G is the arrival of the packets. So the throughput of CSMA CT is greater than that of pure or slotted Loha. For one persistent method, the maximum throughput is around 50% when G is your 1. While in slotted Loha, it is 37%. Maximum throughput in slotted Loha 37%. समझ रहे हैं?
और जो आपका प्योर लावा था वो आपका अप्रोक्सीमेटली 14 to 17% था मैक्सिमम थ्रूपुट. बट इन द CSMA the throughput is around 50% when G equal to 1. For you can say that non-persistent method maximum throughput can go up to the 90% when G is between 3 and 8. Or are you comfortable to see this slide? हाँ, तो ये ध्यान रखना है. देखिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फॉर नॉन परसिस्टेंट मेथड मैक्सिमम थ्रूपुट कैन गो अप टू द 90% व्हेन कैपिटल G इज बिटवीन 3 and 8. और वन परसिस्टेंट में व्हेन G इक्वल टू 1, वन परसिस्टेंट का मतलब हो गया 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, तो उस केस में भी 50% है. लेकिन जहां पे G है, G की वैल्यू जहां आपकी 3 to 8 है, वहां 90% तक नॉन परसिस्टेंट में CSMA इसका थ्रूपुट मिलता है. एडवांटेजेस ऑफ CSMA CD. First one is reliable, means collision are detected and packets are reset, so no data is lost. So it is a reliable method. Relatively fast, a computer does not have to wait its turn to transmit data. Okay, ये कभी भी ध्यान नहीं होगा, इसमें कभी भी ऐसा होता नहीं है. ऑलरेडी आप पैकेट सेंड करते हैं, जहां पे हमको लगता है कोलिजन में भी पॉसिबल, उस पर्टिकुलर स्लॉट में या समय में एक जैमर लगा दिया जाता है. जैमर के बाद फिर कोई भी स्टेशन पैकेट सेंड नहीं करता है. एंड आफ्टर वेटिंग रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम द पैकेट इज रीसेट. समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है कंपैरिजन टू योर स्लॉटेड एंड प्योर एलोआ. एंड थर्ड, इफेक्टिव, मीन्स हैंडल डेटा टू अवॉइड कोलिजन. ठीक है, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज इफेक्टिव मेथड. Limited. Disadvantages or limitation of CSMA CD. First one, it is limited. That is to 2500 meters /11/2 mile. The collision detection mechanism restrict the length of cable segment that can be used. थोड़ा सा ये स्टिकनेस इसमें होती है. और inappropriate for large /active network. The slowdown increases as the network grows larger. जैसे जैसे नेटवर्क आपका बढ़ता चला जाएगा, there may be possibility to slow down. यानी your response जो टाइम है जो आपको मिलना चाहिए एक एप्रोप्रिएट समय में वो नहीं मिल पाता है. So the process is going slow down. Application of CSMA CD. CSMA CD that was used in now obsolete shared media Ethernet variant 10/5, 10/2, and in the early version of twisted pair Ethernet which used repeaters hubs. So this is the application you will be able to see in your screens. 10/2 दिखा रहा है, साथ ही साथ नेटवर्क कार्ड है, BNC टर्मिनेटर है, और भी नेटवर्क इक्विपमेंट है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. These are the applications of CSMA CD. Also used in modern Ethernet built with switches and full duplex connections. No longer need to utilize CSMA CD because each collision domain is now isolated. CSMA CD is still supported for backwards compatibility and for half duplex connection.
तो ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन जरूर इनके देते रहिए। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी में आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीएसएमए सीडी। ठीक है, मीनवाइल आप सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। All are required to write your attendance into chat box. Now, who are interested to give their presentation at this time? अपने भी टॉपिक तैयार करके मुझे प्रेजेंटेशन भी साथ साथ आप देते रहिए। किसका तैयार है इसमें? फर्स्ट ग्रुप में अनमोल। चलिए शो करिए, आपने कहा था कल दे देंगे। शो करिए। जल्दी। प्रेजेंट तो हाँ हो तो रहा है, लेकिन इसको रोटेशन इसका ऑफ करो। हाँ हाँ हाँ, शो करो, शो शो। बताते रहो। स्टैंडर्डाइजेशन।
अनमोल, अनमोल, ये बताओ, ये पूरा तुम पढ़ रहे हो, है ये टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर है? अरे गूगल पे देखा था, प्रिपेयर है कि नहीं है, ये बताओ पहले हमें। ये बताओ कि ये तुम्हारा टॉपिक है। मुझे जरा तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नहीं तो बेटा ये बताओ, अभी एग्जाम है तुम्हारा, मंडे को पेपर है तुम्हारा, कैसे तैयार कर रहे हो? है मंडे को तुम्हारा पेपर है, तो तुम तैयार कैसे कर रहे हो? बताओ। तो गलत बात है। चलिए पीपीटी खुली। नहीं 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 नहीं, अरे अब रुक जाओ, होल्ड। कोशिका महाजन, इनको मैंने रिमूव कर दिया है। इनसे कहिए, कोशिका महाजन को फोन करके कहिए कोई भी मुझसे बात करेगी क्लास के बाद। कार्तिक, हाँ बताओ जरा, एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। बेटा ये सब तो बेसिक है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्लीकेशन लेयर? हाँ, एप्लीकेशन लेयर। और देखिए, ये सब जो हमारा आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, दीज आर रिकॉर्डेड, सो व्हेन इंटरनल विल बी फाइनलाइज्ड, ये सब बातें भी इसमें ध्यान रखी जाएगी। सिर्फ यही एक मतलब नहीं कि हमने आपको पेपर दे दिया और आपने बाय एनी मीन्स किसी भी तरह से, किसी की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, और आपने पेपर मुझे सॉल्व करके दे दिया। जब लाइव परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, इंटरेक्शन कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, इतना आसान नहीं है चीजें जो आप सब लोग इसको कैजुअल ले रहे हैं। नम्रा, ड्यूटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? यस। हाँ, ये याद है, मतलब देख के तो नहीं, नेट से देख के बोल रही हूँ। हाँ, नेट से देख करके नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि नेट से देख करके बोलने में आपका नुकसान है ना। और सभी लोग को मैं एडवाइस यही दे रहा हूं। मैं कल जो है डेटा लिंक लेयर के कॉन्टेक्स्ट में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फिर से डिस्कस करूंगा एक स्लाइड लेकर के, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी पूछूंगा, और आप लोग भी प्रिपेयर करिए टॉपिक को। अब यही चलना है। आप अगर जो कहे वो आपका टॉपिक मैं रिवाइज करा दूंगा, जो आपको लगे कि नहीं सर ये वाला टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ पीपीटी। लेकिन साथ ही साथ आप भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कोशिका महाजन से कहिएगा मुझसे बात करेंगी, कोई भी उनसे कहे फोन करके कि मुझसे बात करेंगी।